इसी तरीके से रिस्पॉन्सेज इधर भी होने के डिफरेंट रीजंस हैं। क्या वजह है कि जब प्राइस बढ़ती है फर्म्स जो है वो इतना ज्यादा दे आर एबल टू इंक्रीज आउटपुट बाय लार्ज एक्सटेंट? क्या वजह है कि एक फर्म, दो फर्म्स हैं, लुक एट दिस, सो बेसिकली लेट्स सी दैट देयर आर टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए अगर, एंड दे बोथ आर सेलिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, they both are in the same industry, they both are rivals of each other. Price बढ़ती है market में by 10%, since it's a competitive market, तो obviously firm B also sells at a higher price, but firm A is able to increase quantity supplied by let's say 15%, however firm B is only able to increase quantity supplied by let's say 5%. तो ऐसा क्यों है कि इसकी supply elastic है, इसकी inelastic है, both are selling the same product in the same industry, but why firm A is able to increase quantity supplied by 15%? Why firm B is only able to increase quantity supplied by 5%? मुझे एक बात बताएं, कौन सी firm will experience a rise in total revenues as compared to the previous situation drastically? Firm A, क्योंकि firm A जो है ना वो quantity supplied को तेजी से increase कर पा रहे हैं, they are able to satisfy the demand of the product. So अगर consumer की demand बढ़ रही है और quantity में जो increase आ रहा है वो अच्छा खासा increase आ रहा है, so don't you think it will benefit the consumer more because they will be actually, भाई अगर consumer demand करे product लेकिन supply ही inelastic है, producer produce ही नहीं कर सकता उसको, तो फायदा, revenues कैसे बढ़ेंगे firms के? Firms के revenues तब बढ़ेंगे जब supply will be elastic because they will be able to satisfy that increase in demand quickly. Understood? So for example what I am saying is, नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? आ जाएगी आगे, अभी डायग्राम में कवर हो जाएगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, पहली चीज तो ये है कि सप्लाई इनइलास्टिक या इलास्टिक होने का रीजन है नंबर 1 प्रोडक्शन लैग. प्रोडक्शन लैग हमें क्या बताता है? प्रोडक्शन लैग हमें बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स फॉर एग्जांपल हैव अ लार्ज प्रोडक्शन लैग. उनका प्रोडक्शन लैग दूसरे कंपैरेटिवली दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन लैग से भी बहुत ज्यादा होता है. क्यों? बिकॉज इट मेक्स इट, जी यही है, थैंक यू, बिकॉज इट मेक्स इट इम्पॉसिबल for suppliers, it makes it impossible for suppliers to respond to change in demand and price. This is very important, please pay attention. What I am saying is कि agricultural goods का production lag इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि suppliers के लिए possible ही नहीं है कि वो demand, यार आज अभी mangoes का season तो है नहीं, अगर mangoes की demand बढ़ जाएगी, do you think the farmers will be able to produce and satisfy the demand for mangoes right now? No, there's no season. They can't produce mangoes like this. It will take a fixed period of time. It takes 9 to 12 months to grow and harvest mangoes, right? So that is why it's not. That is why the supply of agricultural goods is perfectly inelastic for this one particular reason. Hence, if price of the good increases, the proportionate increase in quantity supplied is less than the rise in price. अगर कल को मैं फार्मर्स को जाके बोलूं कि हम आपको दुगनी तिगनी प्राइस भी देने को रेडी है मैंगोज की, मैंगोज लाते हैं, आप बोलेंगे भाई कहाँ से लाते हैं, अभी सीजन नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते. समझ में आ गई बात? इस केस में क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे? द बिगर द प्रोडक्शन लैग, द हायर द प्रोडक्शन लैग, द मोर इनइलास्टिक द डिमांड इज. The bigger the production lag, the more inelastic the demand is. The less the production lag, the less elastic the demand is. Bigger the production lag, more inelastic it is. Less the production lag. अच्छा इधर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर प्रोडक्शन लैग कम है तो डिमांड इलास्टिक है, सप्लाई इलास्टिक है. I mean, you कह सकते हो, but a better way would be तुम इसको बोलो कि it may be less inelastic. क्यों? क्योंकि लैग तो फिर भी है ना, लैग तो है. तो instead of saying it will become elastic, it's a better version would be, although that wouldn't be wrong, but still a better version would be you say it's less inelastic. So less the production lag, you can say it, the less inelastic your supply and quantity supplied will be. Number 2, level of stocks. भाई फर्म ए की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी देखो, फर्म बी की देखो. फर्म बी के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट? और तुम फर्म बी को फर्म ए से कंपेयर कर रहे हो. फर्म ए को देखो और फर्म बी को देखो. फर्म ए के पास कैपेसिटी है, रॉ मटेरियल है, बफर में स्टॉक पड़ा हुआ है, वेयर हाउस है, पूरा स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल है. उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और फर्म बी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत डिफरेंट है.
फर्म ए विल हैज अ वेयरहाउस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एज वेल। कल को अगर फर्म ए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस कर ले तो वो अपने वेयरहाउस में सेव कर लेगा, भले अभी मार्केट में रिलीज ना करे, बफर में सेव कर लेगा। बफर स्टॉक मींस आप एक्सेस स्टॉक प्रोड्यूस करके इसको स्टोरेज में रख दें वेयरहाउस में, और जब डिमांड इंक्रीज हो तो आप रिलीज कर दें वो बफर स्टॉक मार्केट के अंदर। इफ द लेवल ऑफ स्टॉक्स आर हाई then it is much easier for the producer to increase output if demand and price rise. Hence, if you have the level of stock, supply will be elastic. So level of stock में raw material stock और stock of finished goods भी, stock of finished goods, stock of raw materials. So if the stock of raw materials is highly available at the right time and capacity, then yes, supply will be elastic. But if not, then it won't be. And the stock of finished goods is if you have the capacity to end up producing stock of finished goods and you have a warehouse or you can store it in a buffer, then yes, that's also another reason why supply will be elastic. Number 3, you have level of spare capacity. Level of spare capacity का मतलब होता है मेरे पास कितनी आइडल कैपेसिटी है, मेरे पास कितनी आइडल मशीनरी है, मेरे पास कितना आइडल लेबर है, मेरे पास कितने आइडल रिसोर्सेज हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे। समझ आ रही है फरहान बात? तो अगर कल को डिमांड बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पे कल को उसकी शावेज की क्रश ने बोला ये गाना गा दो, शावेज ने खुशी से गाना गाया, उसको पता नहीं था शावेज की जो क्रश थी वो स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी, उसने इतना अच्छा उसने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया विद अ वेरी ब्यूटीफुल कैप्शन और टैग कर दिया लव हार्ट बना के। सही है जी, शावेज हिट हो गया, शावेज के फॉलोअर्स बढ़ गए, कल को उसके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो, इसको डिमांड आना शुरू हो गई, भाई कॉन्सर्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, शावेज खुश। लेकिन अब शावेज के पास इतनी डिमांड आ रही है कि शावेज अकेला मैनेज नहीं कर सकता, तो उसने अपने साथ 10-15 जूनियर्स रख लिए। तो अब उसने क्या किया, अब 10-15 जूनियर रख लिए, यानी उसने कैपेसिटी अपनी इंक्रीज कर दी। लेकिन वो कैपेसिटी अगर स्पेयर में मौजूद पहले से होती, इस पूरे प्रोसेस में शावेज को टाइम लगा ना, अगर पहले से ही इसके पास वो 15-16 बंदे हायर्ड होते जो अभी भले फारिग बैठे होते, जैसी डिमांड आती उसमें से एक बंदे को वहां कॉन्सर्ट बेचता, एक बंदे को वहां बेचता। अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी होगी, आइडल कैपेसिटी होगी, लेबर मशीन इक्विपमेंट लाइंग आइडल होगा, बातें नहीं करो, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी बिजनेस वाज जस्ट हैव टू यूज इट्स अनएम्प्लॉयड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस सप्लाई वुड बी इलास्टिक। तो अगर हमारे पास डिमांड बढ़ेगी लेकिन हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड है, यूज नहीं हो रहे, तो हम उनको यूज करके सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं बड़ी इजीली। अगर स्पेयर कैपेसिटी हमारे पास नहीं होगी, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक, क्योंकि होगा ये कि जब डिमांड राइज होगी बाय लार्ज एक्सटेंट तो प्राइस इंक्रीज होगी, बट क्वांटिटी सप्लाइड और आउटपुट वुड ओनली इंक्रीज प्रोपोर्शनली लेस। तो कल को अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती है जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली प्राइसेस बढ़ती हैं, बट प्रोड्यूसर्स विल रियली नॉट बी एबल टू इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज दे लैक द स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर में अवेलेबल ही नहीं है मशीन, लेबर ही नहीं है अवेलेबल। कल को इकोनॉमिक्स का यहाँ पे बैच बन जाए दूसरा, मेरे पास टाइम नहीं हो सकता है, दूसरे टीचर के पास भी A2 वाले टीचर के पास भी टाइम नहीं हो, तो कहाँ से लाएंगे? बच्चों को मना करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स हम ऑफर नहीं कर रहे। सही है, बात समझ में आ रही है? चौथी चीज है मोबिलिटी। अगर आप मेरी प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई की वीडियो देखें ना, ओ लेवल्स वाली, ओ लेवल्स के फैक्टर्स थोड़े से सिंपल से हैं, इसके फैक्टर्स थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल हैं। Mobility of factors of production is very important. What is mobility? What is mobility of factors of production? Geographical and occupational mobility. Geographical mobility का मतलब होता है कितनी आसानी से मुझे अगर लाहौर से इस्लामाबाद या इवन PCHS से कोई जॉब ऑफर आएगी, I might not go there because I live in DHS, ट्रैवलिंग इश्यूज होंगे मेरे। अगर मुझे दुबई से ऑफर आएगी, हो सकता है I might not go there because मेरी फैमिली यहाँ पर है एंड देन रेंट दुबई का बहुत ज़्यादा है। तो I am geographically immobile, although I will be highly paid over there, but I am geographically immobile. तो immobility of FOP जो होता है ना is very important. Occupational immobility का मतलब होता है कि अगर मुझे जॉब की ऑफर है, जॉब मेरे पास अवेलेबल है, स्किल सेट लेकिन मेरे पास नहीं है, उस जॉब पे जाने का स्किल्स नहीं है मेरे पास, I lack the skills, so I am not able to switch jobs easily, right? So the more immobile your factors of production is, the more immobile your labor is, the more inelastic the supply will be. मोबिलिटी जो होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो मशीनरी और इक्विपमेंट की भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कल को चाय बनाता था और चाय बना के अब मैं लेट्स सपोज कॉफ़ी बना रहा हूँ, तो क्या मैं अपने चाय मेकर को यूज़ कर सकता हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए? इफ़ येस, तो उसका मतलब है बड़े आसानी से वो रिसोर्स रीएलोकेट हो सकती है, तो उसके अंदर मोबिलिटी
रिसोर्स मोबिलिटी है, इट कैन ईजिली बी shifted from one production of a good to another production of a good. So the more mobile your resources is, the more easily it can be moved, the better the output would be, and the lower would be the opportunity cost as well. ये जो मैंने लाइन बोली है, it makes sense because it's kind of related to PPC, but once you go through the videos again, फिल concentration के साथ समझ आ जाएगा. नहीं आए मुझे WhatsApp कर देना. Very important. The more mobile the factor of production are, the more elastic the supply will be. That is the more substitutability. Substitutability जो अभी मैंने बात करी, चाय मेकर या कॉफ़ी मेकर में यूज़ हो सकता है. वो लेबर जो मेरे पास चाय बनाती थी, उसी को मैं बोल दूँ कल को बिरयानी बनाने को. सब्सटीट्यूटेबिलिटी है उसमें या नहीं है? क्या मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स है कि नहीं है? क्या मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है? इसको चाय भी आती हो, बिरयानी भी बेहतरीन बनानी आती है, ये कर ले. इसको नहीं आती, हो सकता है इसको नहीं आती, फिर क्या होगा? तो अगेन, क्या आसानी से आप आउटपुट बढ़ा सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि सप्लाई इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, और ये डिपेंड करता है कि मोबिलिटी क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. पहले आप गाड़ियां बना रहे थे, गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है, आपने बोला मैं वैन बनाऊंगा, या मुझे एग्जांपल याद आ गई, क्योंकि वैन की डिमांड गिर रही है और कल को वैन की डिमांड भी बढ़ी है, प्राइसेस भी बढ़ रही हैं. पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, मैन्युफैक्चर, बाहर से कंपनीज आ रही हैं, बाहर से कंपनीज आएंगी, वो हो सकता है पाकिस्तान में आके अपने ऑपरेशंस करें, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करें. एक्सपोर्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है मोटरवे हाईवेज यूज़ होंगे, मोटरवेज यूज़ होंगे. ठीक है, खैर मोटरवेज एक्सपोर्ट्स के लिए तो नहीं होंगे, बट एटलीस्ट हो सकते हैं, बट एटलीस्ट इंटरनल ट्रेडिंग के लिए, मोटरवेज एक्सपोर्ट्स के लिए तो नहीं होंगे, बट एटलीस्ट इंटरनल ट्रेडिंग के लिए, फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद ट्रेडिंग हो रही है, या कराची टू लाहौर हो रही है, व्हाटएवर, राइट, आगे जाके. तो बात ये कि आपको नज़र आया कि भाई वैन बनाओ, तो आपने वैन बनाना शुरू की, तो आधे से ज़्यादा जो लेबर था वो तो गाड़ियाँ बनाने में एक्सपर्ट था. तो उसका मतलब है कि सब्सटीट्यूटेबिलिटी बहुत कम है, विच मीन्स कि सप्लाई इनइलास्टिक है. ओ लेवल वाले पॉइंट्स लेकर आ गए ना यहाँ पे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट ओ लेवल में भी था, ये 6 है. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, द मोर मनी यू हैव, द मोर टेक्नोलॉजी यू हैव, द मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू हैव. ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज ही कहते हैं, बट आई जस्ट written technology and money as well. Obviously capital is also important, because the more capital you, the more money you have, not capital, the more money you have, obviously the more elastic your supply will be, in the sense that you will have the capacity to hire more factors of production to increase output, right? But if you lack that money, capital मत बोलना. इकोनॉमिक्स में capital का मतलब पैसा नहीं होता, इकोनॉमिक्स में capital का मतलब होता है मशीनरी और इक्विपमेंट. हाँ, अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब होता है पैसा. नंबर 6 है टाइम फैक्टर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये लास्ट है. टाइम फैक्टर हमें ये कहता है कि देखें सर, एक बात है, आप टेलर के पास जाते हैं ईद से, अभी शादियों का सीज़न है, मैंने और मुझे जो है वो अपना शेरवानी का जो था ना, मुझे अपने फादर के लिए शेरवानी बनवानी थी, और क्योंकि हम लोग बड़े डिलेट किस्म के लोग हैं, लेज़ी लोग हैं, एंड टाइम में मैं गया, मैंने उसको, टेलर हमारा बहुत पुराना, उसको बोला भाई ये सारा मूसा जी से सूट वूट ले आया, मैंने ये कपड़ा ले आया, इसकी शेरवानी बनानी है. ठीक है जी. उसने बोला भाई ये नहीं, वो नहीं, वो चू चाचा उसकी शुरू हो गई, क्योंकि उसने कहा शादी का सीज़न है, फलाना ढमाका. उसने बोला ये तो ये इतने कम वक्त में तो सर जी ये पॉसिबल नहीं है, जो डेट आप दे रहे हैं ना उस डेट पर नहीं हो सकती, ये इस तरह पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. मैंने बोला क्यों पॉसिबल नहीं? कह रहे सर क्या मतलब, आप ज़रा दुकान की हालत देख रहे हैं, ये कोई यहाँ ज़मीन पर लेट के जो है वो सिलाई कर रहा है, कोई कम दुकान के बाहर बैठा हुआ है, कोई फुटपाथ के उस तरफ बैठ के भी हमारा काम चल रहा है. हमारा ज़रा लुक एट द अमाउंट ऑफ हसल वी हैव इन आवर शॉप. लुक, हर चीज़ बिक्री पड़ी हुई है, लेबर ओवर टाइम बैठ रहा है, सारी मशीन यूटिलाइज्ड है. वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज आउटपुट इन द मैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप मुझे 15 तारीख की डेट दे रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 18, मैं इसको 15 बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करके इसको 16-17 कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप पुराने कस्टमर हैं. कोई और होता तो मैं लेता ही नहीं. कहने की बात यह है कि ये इस तरह नहीं होता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, रिसोर्सेज मेरे पास इतने शॉर्ट नोटिस में हम नहीं कर सकते काम. तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है, वहाँ पे एटलीस्ट शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड वेयर एटलीस्ट, बस खत्म हो रही है क्लास, डोंट वरी, सुकून से 5 मिनट से बैठ जाओ, सुन लो, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड एक्सेप्ट फॉर लेबर, राइट. तो आपका लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारे रिसोर्सेज जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं. लेबर आपकी वेरिएबल रिसोर्स होती है, आप ओवर टाइम भी करवा सकते हैं. अपने दर्जियों को बोला भाई बेटा 7 बजे छुट्टी नहीं होगी, अब रात के 10 बजे छुट्टी होगी अगले 1 महीने तक, या फिर आपने 2-3 और टेलर्स रख लिए. लेकिन मसला नए लोग हायर करने का मसला फिर यही होता है कि फिर वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाएगा. याद है हमने पढ़ा था, द मोर वेरिएबल फैक्टर्स यू ऐड ऑन
द मोर वेरिएबल फैक्टर्स यू ऐड ऑन योर फिक्स फैक्टर, दुकान तो आपकी एक ही है ना, फिक्स फैक्टर है, छोटी दुकान है, उसमें बंदे भर्ती करते जाओगे और आप इतनी आसानी से नई मशीन, सिलाई मशीन भी नहीं ला सकते, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का भी एक वो होता है। तो अगेन क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन हो सकता है और फैक्ट्री ओनर्स के बाद पता होती है, समझ आ गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मैंने कहा था कि डिमिनिशिंग रिटर्न था कि वेरिएबल फैक्टर जो है आप जब ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर पे डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा, क्योंकि फैक्ट्री ओनर्स को पता, एक सवाल है ना, रख लें हम बंदे और रख लें, इतनी जगह तो है, और भाई डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएगा ना। इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं भर्ती करो शॉर्ट रन के अंदर, जितने ज़्यादा तुम बंदे लेकर आना शुरू हो जाओगे शॉर्ट रन में लिमिटेड कैपेसिटी पे वेरिएबल फैक्टर ऐड कर दोगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट तेजी से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। सो फर्म्स को, फैक्ट्रीज को इस बात का भी डर होता है, तो इसलिए दिस इज अनदर रीजन दैट यू कैन रिलेट दिस पॉइंट विद डिमिनिशिंग रिटर्न्स के शॉर्ट रन में डिमिनिशिंग रिटर्न आने का सेट इन होता है, आसान नहीं होता, आप इतने ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज वाई द सप्लाई इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन। सप्लाई शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है, ये बात हमें पता है, ठीक है, फाइन, दिस इज सिंपल, ये हमने वही बात लिखी है यहाँ पे। लॉन्ग रन, बस ये लास्ट है फिर खत्म हो गया। लॉन्ग रन में क्या होता है गाइस, लॉन्ग रन में सप्लाई इलास्टिक होती है। लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर्स हैव इनफ टाइम टू इंक्रीज आउटपुट एज दे कैन नाउ एक्चुअली हैव, बिकॉज नाउ दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। कैपेसिटी का मतलब है रिसोर्सेज बढ़ गए, नई मशीनें आ गई हैं, 10-15 बंदे हायर कर लिए हैं, एक और शॉप ले ली है हमने सिलाई की, पहले यहाँ थी, हमने पर दूसरी वाली बिल्डिंग में भी हमने एक और वर्कशॉप खोल लिया है अपना, तो कैपेसिटी क्योंकि इंक्रीज हो गई है, नाउ वी कैन मीट मोर ऑर्डर्स, which means that long run is a time period, Zoya, where all factors of production are variable, land, labor, capital, enterprise, all factors of production are variable. You have enough time to increase factors of production to increase output. आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी बढ़ गई है, नई बिल्डिंग ले ली है आपने, नए वर्कर्स हायर करें, आसानी से प्रोड्यूस करें। You have more branches, you have more machines, you have more equipment. आपका long run का period start हो चुका है. Now in the long run, once your long run has started, once your long run sets in, you भी लिख सकते हो. Once your long run kicks in, you भी लिख सकते हो. So then the supply becomes automatically elastic, since now you have the capacity and the resources to respond to that increase in demand.